Hello class. Today we are going to discuss a new chapter in science. The chapter number is 2 and the chapter name is Microorganism, Friend and Foe. Introduction है इसका. You are familiar with many kind of plants and animals, but do you know what there are? What there are other living organisms all around us that are usually too small to be seen with the naked eye. These tiny organisms are called microorganisms और microbes. इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है. फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. इसके अलावा आगे देखते हैं क्या बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मोल्ड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some microorganisms can cause food spoilage or disease. Others are incredibly useful to us. For example, certain bacteria help in making curd and cheese. Cheese and curd बनाने के लिए अपन को बैक्टीरिया का यूज़ करना होता है. While yeast is used in baking and brewing, microorganisms also play key role in nitrogen cycle. Nitrogen cycle में भी ये अपना key role play करते हैं. Microorganisms, our friend and enemies. Microorganisms or microbes are tiny living organisms that are too small to be seen with the naked eye. They are present everywhere in water, soil, air, even inside our bodies. Despite their size, microorganisms play an important role in our lives. Some are beneficial while other may cause harm. कुछ तो हमारे लिए beneficial होते हैं और कुछ harmful भी होते हैं, ठीक है. इसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अपन चाहते हैं कुछ बहुत सारे टाइप के अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं. एक तो है बैक्टीरिया, कुछ है फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है. इसके डायग्राम दे रखे हैं. ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी है, ये प्रोटोजोआ, ये फंगी है, ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे वायरस and other microorganisms. Viruses are also microorganisms, but they are different from bacteria, fungi, protozoa and algae. Unlike this virus cannot reproduce or carry out life process on their own. They need to infect the cells of living organism called a host to multiply. The host could be bacterium, plant or animal. Once inside the host cells, virus take over the machinery of the cell to replicate and produce more virus. How virus reproduce? Virus किस तरीके से reproduce होते हैं? Viruses are unique because they can only reproduce when they are inside the cell of a host organism. When a virus infects a host, it inserts its genetic material DNA or RNA into the host cells. That causes the host cell to produce more viral particles instead of performing its normal function. Eventually, the host cell bursts, releasing new virus that go on to infect other cell. This is why viral infection can separate rapidly within a host organism. ठीक है. इसके बाद आगे है disease caused by virus. तो वायरस से अपन को कौन कौन सी डिजीज हो सकती है. तो सबसे पहला है क्या, कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो. इसके बाद है डिजीज कॉज्ड बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज होती है. तो प्रोटोजोआ डिजीज, dysentery caused by protozoa. Dysentery leads to diarrhea, often with blood in the stool. इसके बाद है मलेरिया. मलेरिया is caused by a protozoan parasites called plasmodium, which is transmitted by mosquito bites. It causes high fever and can be life threatening.
इज नॉट ट्रीटेड। फिर है बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, ये है टीबी कॉज्ड बाय माइक्रो बैक्टीरियम, है ना। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, कहाँ जिंदा कहाँ रहते हैं ये, तो सबसे पहला है क्या, इनके हैबिटेट आइस कोल्ड क्लाइमेट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डेजर्ट, फिर है मार्शी लैंड्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, अपने बॉडी के अंदर भी जिंदा रहते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फ्री लिविंग भी होते हैं कुछ कुछ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी, microorganisms play a crucial role in our life. Some are beneficial and help us in various ways, while other can be harmful and cause disease. इसके बाद next है, in this section we will explore how microorganisms, often invisible to the naked eye, are essential in many aspects of daily lives, ठीक है। friendly microorganisms, microorganisms are used in a wide range of activities that benefit human. These helpful microbes are involved in food production, environmental cleaning, medicine and agriculture. Making curd of and bread, making of curd and bread, ब्रेड एंड कर्ड बनाते हैं तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। वाई इज कर्ड टू एडेड वार्म मिल्क, क्यों किया जाता है, ताकि जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीपल होके उसको दही में कन्वर्ट कर सके, कर्ड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। कमर्शियल यूज भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे विनेगर को बनाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो इसके मेडिसिनल यूज भी होंगे, तो इसमें एंटीबायोटिक में इसका यूज किया जाएगा। और एंटीबायोटिक यूज क्यों किया जाता है इन ह्यूमन मेडिसिन, जब हम बीमार हो जाते हैं दवाई लेते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। लाइव स्टॉक एंड पॉल्ट्री में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना हाउ वैक्सीन वर्क कैसे करती है। When a disease causing microbes, कोई भी माइक्रोब के डिजीज है, enter our body, our immune system respond by producing antibodies to fight the invader. These antibodies are special proteins that recognize and neutralize harmful microorganisms. Once the body successfully fights off the microbes, it remembers how to defend itself if the same pathogen tries to infect the body again. In the same memory allows the body to respond quickly and effectively in future, preventing the disease from taking hold. When dead or weakened microbes are introduced into a healthy body through vaccine, the immune system detects the invaders and produce the appropriate antibody to fight them off. Since the microbes in the vaccine are either dead or too weak to cause disease, the person doesn't get sick. However, the body still develops immunity by keeping the antibodies ready for future attack by the real harmful version of the microbe. इसके बाद नेक्स्ट है अपना डिजीज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या होता है, डिजीज को प्रिवेंट भी किया जाता है। इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, ये देखते हैं। certain type of bacteria have a remarkable ability to capture nitrogen from the atmosphere and convert it into form that plants can use. This process, known as nitrogen fixation, enrich the soil with nitrogen, which is an essential nutrition for plant growth. These bacteria, referred to as biological nitrogen fixer, play a vital role in increasing soil fertility. Plants benefit from this natural process as it improves their growth and yields, reducing the need for chemical fertilizer. Example of such a bacteria include rhizobium, which lives in roots of leguminous plant like peas and beans. By working with this, the bacteria, farmers and gardeners can maintain healthy soil that promote sustainable agriculture. इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्लीनिंग एनवायरनमेंट ना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, ये भी हमारी ही ड्यूटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है
harmful microorganisms. Although microorganisms are essential to life, but they can also be harmful in several ways. Certain microorganisms cause disease in human, plants, and animals. These harmful microorganisms are called pathogens. Apart from causing illness, some microorganisms can spoil food, damage clothing, and even in leather goods. Disease causing microorganisms in humans. ठीक है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे अपन. एक चार्ट है अपने पास, इसे अपन रीड करके देखते हैं कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज है, इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिम्स कौन से हैं, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से, प्रिवेंट मेजर एंड जनरल कौन कौन से हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है अपना ह्यूमन डिजीज में क्लोरेरिया. तो इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाइब्रियो कोलेरिया, बैक्टीरियम है ये. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. प्रिवेंट मेजर जनरल है इसका, ड्रिंक क्लीन बॉइल्ड एंड ट्रीटेड वाटर, मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन, अवॉइड स्ट्रीट फूड. ठीक है, इसके बाद है टीबी ट्यूबरक्लोसिस. इसके जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरियम है. इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयरब्रोन है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. इसके बाद प्रिवेंटिंग मेजर है, कवर माउथ व्हेन कफिंग, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, एंश्योर गुड वेंटिलेशन, गेट वैक्सीनेटेड, है ना. इसके बाद है मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिया मॉस्किटो, ये मच्छर से होता है फीमेल मॉस्किटो से. यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स एंड एलिनेटेड सेजेंट वाटर, वियर प्रोटेक्टिव क्लोथ्स. इसके बाद है कॉमन कोल्ड, ठीक है, राइनो वायरस से होता है ये. इसके बाद एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम स्नीजिंग, कफिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सरफेस. वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, कवर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस सिक इंडिविजुअल. इसके बाद है डेंगू वायरस से होता है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एड्स मॉस्किटो. यूज insect repellents, wear long sleeved clothing, eliminate stagnant water, use mosquito nets. चिकन पॉक्स के लिए varicella zoster virus. इसके बाद है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू एयरब्रोन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम स्नीजिंग एंड कफिंग. गेट वैक्सीनेटेड, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मेंटेन गुड हाइजीन. टाइफाइड सैलोमोनेला टाइफी बैक्टीरियम है ये. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रिंक सेफ वाटर, अवॉइड रॉ एंड अनक्लीन फूड, मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन. इसके बाद है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल. तो एनिमल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज जो होती है वो क्या क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा. सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट की जो डिजीज है वो देखते हैं. तो यहाँ पे है सबसे पहला प्लांट डिजीज, रस्ट होती किस में, वीट में होती है. इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्यूशेनिया, और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयरब्रोन स्पोर्स. इसके बाद है प्लांट डिजीज में ब्लाइट, पोटैटो में होगा फाइटोप्थोरा. इन्फेस्टेंट्स है ये वाटर से, सोइल से, इन्फेक्टेड सीड से होता है. रेड रोट, ये शुगर केन में होगा. ये होगा कॉलेक्ट्रियम फ्लैक्टम, फंगस है ये, इन्फेक्टेड प्लांट्स में होगा. मलेरिया, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल और वाटर से ये स्प्रेड होता है. ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है. फूड को प्रिजर्व किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि जितनी भी डिमांड है मार्केट में उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि हर इंसान के पास फूड को पहुंचाया जा सके. वो तभी पॉसिबल है जब अपन फूड प्रिजर्व सही तरीके से करेंगे. ठीक है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक द फूड एंड कॉज इट टू स्पॉइल, उसको स्पॉइल कर देता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ये ट्रिगर्ड हो जाती है माइक्रोब की ग्रोथ से. ठीक है, तो किस किस कुछ मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए. एक है केमिकल मेथड. ठीक है, इसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट से भी प्रिजर्व किया जाता है. इसके बाद प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से प्रिजर्व किया जाएगा. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ज़्यादातर अचारों में यूज़ किया जाता है. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, है ना, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे भी प्रिजर्व किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हो, उसके अलावा एक और था प्रिजर्वेशन का स्टोरेज एंड पैकेजिंग. इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है अपन इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम प्लेज अ की रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें राइबोजियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में की रोल प्ले करता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ फ्रॉम द प्लांट, दैट प्लांट कैन यूज राइजोबियम फ्रॉम्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द leguminous plants such as beans and peas by living in their roots nodules. In relationship, rhizobiums help these plants absorb nitrogen, which is the vital for their growth, while the plant provides nutrition to the bacterium. Nitrogen can also be fixed naturally through lightning, but this accounts for only a small fraction of the nitrogen fixation process. Despite nitrogen being fixed by this process, you might wonder why the nitrogen level in atmosphere remains constant. ठीक है, इसके बाद आगे है अपना ये रूट्स होती है ना इन प्लांट्स की, विद द रूट्स न्यूडल्स. यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं. तो अपटेक बाय प्लांट, प्लांट से अपटेक किया जाता है. एनिमल ईट्स प्लांट्स. उसके बाद नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ. इसके बाद ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, डेथ के बाद ये फिर सॉइल में मिल जाता है. फिर ये बैक्टीरियम टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. फिर ये चेंज होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये होगा लाइटनिंग क्विक्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन. इसके बाद बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड. फिर ये चेंज होगा वापस से कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और ये लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन जो था वो भी चेंज होगा नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. इसके बाद आगे है अपना टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी से ये सारी अपने हेडलाइन पढ़ी है अभी. एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप, पैथोगोनस एंड जर्म्स, पैथोजन एंड जर्म्स. इसके बाद अपना आएगा चैप्टर रिकैप. चैप्टर रिकैप में फर्स्ट है अपना microorganisms are extremely tiny and cannot be seen with the naked eye. They require the use of a microscope to be observed. इसके बाद नेक्स्ट है अपना they can survive in a wide variety of environments from extreme condition like ice cold region and hot spring and desert and marshy lands. These microorganisms are found everywhere in the air, water, and even inside the bodies of plants and animals. They can be either unicellular, single-celled, and multicellular, composed of many cells. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Even though viruses are very different from these microorganisms, they are also classified as microbes due to their tiny size. Viruses differ from other microorganisms in the they cannot reproduce on their own. They must infect a host microorganism to be it bacterium, plant, for animal cell to multiply. Some microorganisms are useful for humans. For example, they are used in commercial production of medicine like antibiotic, as well as the production of alcohol and other fermented
fermented product. Certain microorganisms act as decomposer, breaking down organic waste and the remains of dead plants and animals into simple substance. This process helps to clean up environment. Some microorganisms such as protozoans can be harmful as they cause serious disease like dysentery and malaria. इसके बाद नेक्स्ट है असाइनमेंट. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन नहीं है? इंसेक्ट. विच ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली प्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल. वायरस. पेनिसिलिन is an example of an antibiotic. The microorganism that helps in nitrogen fixation is Rhizobium. Which disease is caused by a virus? तो इसके लिए होगा common cold. Microorganisms are harmful. Microorganisms are useful in making antibiotic, making bread, nitrogen fixation, all of the above. इसके बाद है next fill in the blank. fill in the blank का first question है Dash is a fungus used in the making of bread and alcohol. तो इसके लिए होगा yeast. Dash are microorganisms that can fix nitrogen in the soil. तो इसके लिए होगा Rhizobium. Vaccine help in the prevention of disease, prevention of dash disease, serious disease. Microorganisms that cause disease are called pathogens. Dash is the process by which harmful microorganisms like killed by heating, pasteurization. Next step now, true and false. Virus can grow and multiply outside living cells. False. Protozoa cause disease like malaria and dysentery. True. Algae are only found in the soil. False. Microorganisms are harmful and have no beneficial use. False. Yeast is used in making antibiotic. False. इसके बाद next step now. Very short answer type question. Short answer type question. Give reason, higher order thinking skills, life skills, project, activity and additional question. इसके बाद ये चैप्टर होता है यहाँ फिनिश. इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय.